Okay, good morning, 10th standard. Hope you all are safe and happy birthday to those who are having their birthday today. So, today we are just going to read that what was the reason for the civil war in Sri Lanka and what were their demands. So, before just starting with this topic, I just want to revise the topic again, the ethnic composition, the majoritism, everything. I just want to revise it again. First, the ethnic composition of Sri Lanka was categorized into two languages. One was Sinhala and other was Tamil. The percentage of Sinhala was 74 and the percentage of Tamil was 18. One more language was there in Sri Lanka, that was Christian, and the percentage is 7%. Okay. Now, generally the language which was used, mostly used, it was used by the Buddhist people only. Okay, Sinhala was generally uh, used by the Buddhist people, so they were in majority. So the Tamil speakers were two. There were Sri Lankan Tamils who were the natives of Tamils, and Indian Tamils who have migrated from India to Sri Lanka. So Sri Lankan, the native people used to speak Tamil, and the Indians, they also used to speak Tamils, and the Buddhists used to speak the language that is Sinhala. So that they were in majority. So they have made a community who believe that they should rule the country. Obviously, जो ज़्यादा लोग होते हैं, they say that only that we are going to rule the whole country. So वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को और अपनी परसेंटेज को ध्यान में रखे एक कम्युनिटी बनाई और उन्होंने बोला कि हमको देश चलाना चाहिए, जिससे कि एक वर्ड इन्वेंट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड मेजॉरिटिज्म. ठीक है ना. मेजॉरिटिज्म, जो मेजॉरिटियन मेजर्स हैं वो क्या क्या थे, ये थे कि श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ. हमारे एक साल के बाद वी हैव टेकन इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947. सो दे हैव टेकन इंडिपेंडेंस इन 1948, एक साल के बाद. देन एक्ट वाज पास, बिकॉज without any act you can't take any decision. So act was passed in 1956. Okay, so in that they have said that Sinhala will be the official language. That Tamil should not be the official language because it is in less percentage. Sinhala should be the official language. Third, all the policies, the facilities, everything was favoring the Sinhala community, not the Tamil community, because they were in more percentage. Next point, we have read that new constitution was there to protect the Buddhism, because the Buddhists were the people who were speaking Sinhala. So there were constitution to protect Buddhism in that country. तो श्रीलंका, जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो दे वर फीलिंग एलिनेटेड बिकॉज नो पॉलिसीज़ वर फेवरिंग देम. उनके लिए कुछ नहीं बन रहा था, कोई पॉलिसीज़ नहीं बन रही थी, उनको कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी. तो दे वर फीलिंग एलिनेटेड कि वाई दे आर देयर परसेंटेजेस कम, somebody else is favoring them in their own country, so they were feeling alienated. Now they felt that constitution and government denied from equal political. Obviously this comes up our mind that when we think when we come to a conclusion that majority and minority is there, we think that हमारे लिए तो कुछ अधिकार बने ही नहीं है. We used to say that हमारे लिए तो कुछ बना ही नहीं है. आम जनता जो अभी चल रहा है, आम जनता क्या बोल रही है, जब माइग्रेंट लेबर इधर से उधर जा रहे थे तो आम जनता क्या बोल रही है, सरकार अमीरों के लिए कर रही है, सरकार माइग्रेंट लेबर के लिए कर रही, सरकार आम जनता के लिए नहीं कर रही. आम जनता क्या है, आत्मनिर्भर खुद ही है. सो जिनके लिए कुछ नहीं होता वो बोलते हैं कि यस हमारे लिए कुछ राइट्स बने ही नहीं है. एंड देन जो रिलेशंस था वो सिन्हाला और तमिल के बीच में क्या होने लगा, बहुत ही डिस्टर्ब्ड होने लगा, विच led to the civil war. So for the demand of Sri Lankan Tamils were, first we have to know that demand क्या थे और किस वजह से हुआ. So demand were recognition of Tamil as an official language. They said that their percentage was less, so they started saying that हमारी भी language को क्या बनाया, official language बनाया. As Sinhala was the official language 1956 जो act pass हुआ था, तो Tamils were also saying कि हमारी भी language को आप official language बनाओ, so that we can also get all the things which the Sinhala community are getting it. Second, the demand for regional autonomy. Autonomy means मतलब होता है means individual rights. So they were saying कि हमारी भी जो religion है,
हमारी भी जो रीजनल है ना, जो रीजन है उसको भी क्या बोलना है, फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए दोनों कम्युनिटी में, दैट इज़ तमिल स्पीकर्स एंड सिन्हाला स्पीकर्स, दोनों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो प्रोग्राम जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन सब में इक्वालिटी मिलनी चाहिए। डिमांडेड एंड इंडिपेंडेंट तमिल state. Now they have said that we just need that Tamil should be an independent state because it was in minority and they were not getting the things. अब अगर हम अलग अपना स्टेट ही बना लेंगे तो क्या होगा, हम रूल कर सकेंगे, फिर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी डेमोक्रेसी बनाएंगे। सो again I'm just repeating their demands. First was making Tamil as official language. Second, रिलीजन और रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो रीजन है उसको वो किसी के अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। थर्ड, हर एक जगह में इक्वालिटी होनी चाहिए टू द सिन्हालास ऑल्सो एंड टू द तमिल्स ऑल्सो। एंड द फोर्थ वन इज तमिल ईडम शुड बी द इंडिपेंडेंट स्टेट। एंड व्हाट लेड टू द सिविल वॉर, सिविल वॉर क्यों हुआ, द श्रीलंकन तमिल जो माइनॉरिटी में थे, है ना, उन्होंने ही लड़ना शुरू कर दिया फॉर देयर राइट्स। तो श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर मेकिंग तमिल्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये डिमांड जो हुई तो उनको लगा कि शायद उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी, तो दे हैव स्टार्टेड डूइंग द सिविल वॉर। तो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स निकाले, पार्टीज निकाली, जिससे कि द पीपल शुड मेक तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले हम बोलते, खबर सुनिए ना, पहले बात फिर मुक्का लात, तो दे हैव डन द सेम। श्रीलंका हैज स्टार्टेड डूइंग पहले बात एंड देन द मुक्का लात वाज इन द फॉर्म ऑफ movements and the struggles. So they have started they have launched parties to make Tamil as an official language. Second, their demands were denied. जो गवर्नमेंट थी उनकी डिमांड्स उसने क्या कर दिया, मना कर दिया, खारिज कर दिया, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हु डिमांडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट। ना इसकी वजह से जो पार्टीज जो स्ट्रगल चल रहा था उसकी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ना होता ऐसा है कि जैसे आपने देखा, गिविंग एन एग्जांपल, ओके, बॉयज़ ने तो बहुत किया होगा, है ना, आपने देखा होगा कि जैसे आप भंडारा करें, भंडारा नाम सुना है आप लोगों ने, होते ना, हम किसी के ऊपर कपड़ा पीटना शुरू करते, तो उसमें जो पार्टिसिपेंट नहीं होता, जिसको उस इंसान को लेना देना भी नहीं, तो वो भी अपना 2 हाथ साफ करके चला जाता है। तो उसी तरीके से जब ये स्ट्रगल चल रहे थे तो कुछ ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने भी क्या कर लिया, वो भी शामिल हो गए श्रीलंकन तमिल्स के साथ, और उन्होंने भी डिमांड किया कि हमारी भी नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट, श्रीलंका की जो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है उसको भी इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए। उन्होंने भी चलो अपने हाथ धो लिए, चलो भाई हम भी अपना भी काम करवा ले। एंड द फोर्थ वन इज दिस डिस्ट्रस्ट टर्न इनटू वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली इनटू सिविल वॉर। और इन सब की वजह से क्या हो गया, एक सिविल वॉर, लोगों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, क्योंकि एवरीबडी वॉज डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट। दिस वॉर फोर्स पीपल टू लीव देयर कंट्री एंड मैनी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। इन चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना देश छोड़ दिया और अपने रोज़गार भी छोड़ दिया। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट लेड टू सिविल वॉर। फर्स्ट, डिमांडिंग फॉर तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन लोगों ने बहुत सारा स्ट्रगल किया। सेकंड, उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई। थर्ड, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी बीच में आ गई और उन्होंने बोला कि नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट को आप क्या बना, इंडिपेंडेंट स्टेट बना दे। फोर्थ, कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने सिविल वॉर, लड़ाई झगड़े का नाम ले लिया, जिसमें लोगों मार पिटाई और फिर बहुत सारे वायलेंस होता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन, इस वॉर की वजह से बहुत सारे लोगों, द पीपल हैव लेफ्ट देयर कंट्री एंड दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। सो दिस वाज द रीजन फॉर सिविल वॉर। फर्स्ट, you have to explain the demand, and the demand, when it was not work out, it taken the place of civil war. So tomorrow we are going to read the desirable, how power sharing is desirable, that is most important, and the different forms of power sharing in modern democracies. 2 topics are left which we are going we will be trying to cover it tomorrow, okay.
or till Friday. So because Friday you are having a test, so till tomorrow I'll be going to finish it off with this chapter. Okay, thank you class.